we already have seen dihybrid cross, Mendelian dihybrid cross. ठीक है? I will revise that Mendelian dihybrid cross for you. ठीक है? तो उसमें क्या होता है? समझो एक सेल है, ठीक है? एक सेल है, ठीक है? That is meiotic cell. इसको हम germinal cell बोलेंगे, ठीक है? This is a germinal cell, ठीक है? And this is another germinal cell. I am revising the dihybrid cross first, ठीक है? I am revising Mendelian dihybrid cross. Then we will see linkage, ठीक है? तो अभी देखो, ठीक है? This is one germinal cell and this is another germinal cell, ठीक है? Germinal मतलब क्या इनका meiosis होगा? These are not somatic cells. These are germinal cells, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अभी इसमें? Let us suppose this is one pair of chromosome, ठीक है? And this is another pair of chromosome, ठीक है? ठीक है? And here also one pair of chromosome. इसको थोड़ा सा डिमार्केट करेंगे ऐसा, ठीक है? So we will be able to identify the chromosomes, ठीक है? Later on, ठीक है? And one another pair of chromosomes, ठीक है? ठीक है? So we will be looking for the chromosomes now, ठीक है? Which chromosome is where, ठीक है? कौन सा chromosome कहाँ पे है gamete में, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है? अभी देखो, this is one pair of chromosome, homologous chromosome. This is another pair of homologous chromosome. This is one pair of homologous chromosome. This is another pair of homologous chromosome. ठीक है? Let us suppose there is one character on this homologous chromosome. ठीक है? One character is located. Let us suppose height. On this chromosome height is located. ठीक है? ठीक है? And on this chromosome, let us suppose flower color. ठीक है? Flower color. Flower color. ठीक है? तो same case here. ठीक है? Same case is here. Now see, what we want to do now. ठीक है? There will be meiosis in this cell. There will be meiosis in this cell. ठीक है? So gamete formation will be there. Whenever there is meiosis, gamete formation will be there. अभी देखो क्या होगा? This cell is pure. Pure means what? This chromosome will be carrying gene for capital T. This chromosome will be carrying gene for capital T. This chromosome will be carrying. This is also pure. ठीक है? Flower color. Which is the dominant flower color? Violet is the dominant flower color in the P. ठीक है? So this is also dominant violet, and this is also dominant violet. So this plant is pure now for height and flower color. ठीक है? This plant is pure, and this plant is also pure, but this is pure dominant and this is pure recessive. ठीक है? This is pure dominant and this is pure recessive. So this chromosome will be carrying a gene for small t, and this chromosome will carry gene for small t. This chromosome will carry a gene for small v, and this chromosome will carry a gene for small v. ठीक है? So this is the parental generation now. ठीक है? This is the parental generation. ठीक है? Now we will be producing gametes for this one. ठीक है? So when meiosis occurs, ठीक है? When meiosis occurs, what happens? First there is a separation of homologous chromosomes in meiosis 1. In meiosis 1, homologous chromosomes do separate. Means this is one chromosome and this is one chromosome. These two chromosomes will separate during meiosis because this chromosome and this chromosome are homologous because both are coding for height.
this pair of chromosome is homologous. This chromosome and this chromosome is not homologous because this is coding for head and this is coding for flower color. So what will happen during meiosis 1? This and this chromosome will definitely separate, and this will go to another gamete and this chromosome will go to another gamete. Okay? So there is a separation of homologous chromosome in meiosis first. Okay? So in meiosis first, what will happen then? Let us suppose we will draw now meiotic cells now. After cells after meiosis first, okay? And there are also after meiosis first, okay? After meiosis first, this is going to happen, okay? So let us suppose this cell comes here, okay? Let us suppose these cells come here, okay? Let us suppose this is the cell which is coming here. So this is the chromosome which is coming in this daughter cell. So this will be the chromosome which must go to another daughter cell. If this is not happening like this, that means there will be some genetic disorders. Okay? If this and these chromosomes, if these two chromosomes goes to a single daughter cell, that is called as non-disjunction. Okay? That is called as non-disjunction. Non-disjunction. Disjunction. Okay? What happens in non-disjunction? It is a failure in separation of homologous chromosomes during meiosis first. Okay? What do you mean by non-disjunction? It is a phenomena of failure of segregation of homologous chromosomes during meiosis first. मतलब meiosis first में समझो हम लोग को पता है कि meiosis first में homologous chromosome का separation होता है, लेकिन समझो किसी वजह से जो homologous chromosome का separation नहीं होगा, यदि नहीं होगा meiosis first में, then that is called as non-disjunction. In that case, both the homologous chromosomes goes to a single daughter cell. Okay? In that case, both the homologous chromosomes goes to single daughter cell, and so if that daughter gamete fertilizes with another cell, then that progeny is defective. Okay? We will be looking that in case of Down syndrome, Turner syndrome, and etc. Okay? So after this is the we will be studying now linkage and recombination. After that, we will study sex determination, and then after the chromosomal disorders. Okay? Now see, अभी क्या है कि एक क्रोमोसोम homologous है because both are coding for the height, ठीक है, and both these chromosomes are pure. What do you mean by pure? This is also coding for capital T and this is also coding for capital T, ठीक है? ठीक है? So we will be writing here capital T, ठीक है? Capital T and capital T. Okay, so that later on we will be able to find the which is capital TX and which is small tx. Okay. Now, what about these two chromosomes? Okay. This is also capital B, and this is also capital B. Okay. Okay. This is small t. This is small t. This is small v. This is small v. This is small v. This is small v. Okay. Now what happens? Now we have segregated these two chromosomes. Okay. This is meiosis first. Meiosis first अभी हम लोग कर रहे हैं. Okay. We have segregated these two chromosomes. Now we must segregate these two chromosomes also. हम लोग को ये दो chromosomes भी segregate करने पड़ेंगे. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे? एक chromosome को हम यहाँ पे डालेंगे. और एक क्रोमोसोम को हम यहाँ पे डालें और वाइस वर्सा. जैसे कि समझो मैंने इस क्रोमोसोम को यहाँ पे डाला तो क्या होगा? कैपिटल X into कैपिटल V. तो मुझे इस क्रोमोसोम को यहाँ पे डालना होगा. नॉर्मल फिनोमेना, वी आर स्टडीइंग नॉर्मल फिनोमेना. दैट मींस X into V. ठीक है? X into V. ऐसा भी हो सकता है कि यह क्रोमोसोम यहाँ पे आए और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आए. इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं. इन दोनों का सेपरेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस टू. ऐसा नहीं कि समझो ए फैक्टर है, इसमें गया तो
इसमें ही जाएगा, ए फैक्टर इसमें गया तो ए जो अकेला फैक्टर है वो कहां पे भी जा सकता है, मतलब इसका सेग्रीगेशन इस पे डिपेंड नहीं है, मतलब ए और ए दोनों लिंक में, इसलिए ऐसा है। ठीक है, समझो ऐसा होता, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां पे नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो we'll take the same cell. ठीक है, let us suppose these two gene height and flower color. ठीक है, if they are not on these different chromosomes तो होगा क्या सिस्टम, देखो। ठीक है, समझो एक क्रोमोसोम है। ठीक है, so this is the chromosome now. ठीक है, this is chromosome. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो हाइट एंड फ्लावर कलर, these two genes, two factors now located on the same chromosome. तो अभी क्या समझो यहाँ पे है, लेट अस सपोज यहाँ पे है कैपिटल T, तो यहाँ पे भी कैपिटल T होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्योंकि G2 फेज में जेनेटिक मेटेरियल का डबलिंग ऑफ जेनेटिक मेटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड बनती है तो A1 सिस्टर क्रोमैटिड है, तो ये जो अनदर सिस्टर क्रोमैटिड है ये एग्जैक्टली रेप्लिका होती है इस सिस्टर क्रोमैटिड की। ठीक है, यहाँ पे है कैपिटल T, मतलब यहाँ पे भी कैपिटल T होगा। ठीक है, और लेट अस सपोज यहाँ पे है, लेट अस सपोज यहाँ पे है कैपिटल V, तो यहाँ पे भी कैपिटल V होगा। ठीक है, ठीक है, एंड सेम इज बिकॉज़ ट्रू होगा, प्लांट इज ट्रू ब्रीडिंग, तो यहाँ पे भी कैपिटल V होगा, यहाँ पे भी कैपिटल V होगा, यहाँ पे कैपिटल T होगा, और यहाँ पे कैपिटल T एंड कैपिटल V। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल t, स्मॉल v, स्मॉल v, यहाँ पे भी स्मॉल v, यहाँ पे भी स्मॉल v, यहाँ पे भी स्मॉल v। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल t, यहाँ पे भी स्मॉल t। देखो अभी स्टूडेंट, अभी हम लोग इसका भी मियोसिस करेंगे। ठीक है, हम लोग इस सेल का मियोसिस स्टडी कर रहे हैं। अभी मियोसिस फर्स्ट हम लोगों ने किया है, यहाँ पे भी मियोसिस फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो कैपिटल X स्मॉल t, कैपिटल X स्मॉल t। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स, एंड कैपिटल X स्मॉल v, कैपिटल X स्मॉल v। ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, मतलब दिस इज independent assortment. This gamete has been produced and the rule followed is independent assortment. These two cells has undergone meiosis first, and what is the rule followed? Independent assortment. What do you mean by independent assortment? Separation of these two is independent of separation of these two, or separation of these two is independent of separation of these two. देखिए यहाँ पे देखो अभी। ठीक है, अभी हम लोग इनका मियोसिस फर्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी इनका मियोसिस फर्स्ट करेंगे। जब इन दोनों सेल का मियोसिस फर्स्ट करेंगे तो देखो अभी क्या होगा। ठीक है, जब इन दोनों सेल का मियोसिस फर्स्ट करेंगे तो देखो अभी क्या होगा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, मियोसिस करने हम लोग डॉटर सेल will be making that smaller in size. ठीक है, ठीक, so these are the daughter cells now. ठीक है, these are the daughter cells. ठीक है, इसका daughter cells यहाँ पे होगा। ठीक है, after meiosis first। ठीक है, meiosis second हम बाद में करेंगे। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट, so these two are homologous chromosomes. ठीक है, carrying two characters, height and flower color. These are also homologous chromosomes carrying two characters, height and flower color. Both these chromosomes, this is pure for height and pure for flower color. This plant is pure for height
and pure for flower color, but this is resistant, this is dominant. ठीक है? Now what will happen? After meiosis first के बाद क्या होगा? ठीक है? This chromosome will go to the one of the daughter cell, so this will come over here, and this will come over here. Now see, segregation of height is dependent on segregation of flower color. यहाँ पे segregation of height is dependent on segregation of flower color. इसका मतलब क्या है कि height के साथ ही flower color ए जाएगा. When this is important, now we will see later. Now ये important क्यों है स्टूडेंट? ठीक है? अभी क्या होगा सुन देखो. अभी क्या होगा मेरा स्टूडेंट? यहाँ पे है कैपिटल T, ठीक है? तो यहाँ पे कैपिटल T है, ठीक है? This is capital T now, ठीक है? And this is capital V now, ठीक है? So this is also capital V, and this is capital T, ठीक है? Here also small v, यहाँ पे भी small v होगा, ठीक है? Small v, यहाँ पे भी small v होगा, यहाँ पे small t, यहाँ पे small t, यहाँ पे small t, यहाँ पे small v होगा, ठीक है? So after meiosis first ऐसा हो रहा है, यहाँ पे independent assortment का law followed है, वहाँ पे independent assortment का law followed नहीं है, ठीक है? That is the basic thing, ठीक है? अभी उसके बाद देखो स्टूडेंट, ठीक है? हम क्या करेंगे? अभी meiosis 2 करेंगे, ठीक है? अभी meiosis 2 में क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है, क्योंकि ये तो अभी तो these two chromosomes are not homologous chromosomes. जैसे कि यहाँ पे A और A homologous chromosome थे, ये A chromosome और A chromosome homologous chromosome था. meiosis फर्स्ट में ऐसा हुआ था. meiosis सेकंड में क्या होता है? homologous chromosomes होते ही नहीं, तो सेपरेशन का सवाल ही नहीं है. meiosis 2 में क्या होता है? जो भी क्रोमोसोम है उनका सिस्टर क्रोमैटिड अलग-अलग हो जाता है. मतलब एक क्रोमोसोम है तो इसका A सिस्टर क्रोमैटिड अलग गैमेट में जाएगा, A सिस्टर क्रोमैटिड अलग गैमेट में जाएगा, ठीक है? So it is a mitotic type of cell division. माइटोसिस टाइप ही है, ठीक है? क्योंकि वहां पे सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और दो डॉटर सेल्स होती है. तो इसके बाद आप देखोगे क्या स्टूडेंट? These will be the two daughter cells. We draw small cells. देखो आप, ठीक है? So these two are the daughter cells. These two are the daughter cells. यहाँ पे भी दो daughter cell बनेगी, यहाँ पे भी दो daughter cell बनेगी, ठीक है? इससे दो daughter cell बनेगी, इससे भी दो daughter cell बनेगी, ठीक है? इससे दो daughter cell बनेगी, and इससे दो daughter cell बनेगी, ठीक है? अभी देखो स्टूडेंट, ठीक है? So what will happen now? This chromosome will split now. A sister chromatid अलग daughter cell में जाएगी और A sister chromatid. These two are identical sister chromatids, ठीक है? अभी हम लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. We are not considering the crossing over here now, ठीक है? बाद में हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे, ठीक है? ठीक है? अभी तो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे कि क्रॉसिंग ओवर कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है तो यहाँ पे आएगा. सो दिस इज द वन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है? अब ए सिस्टर क्रोमैटिड अलग इसमें जाएगा, ठीक है? तो सो दिस सिस्टर क्रोमैटिड विल गो इन दिस वन, ठीक है? सो दिस वन. अभी क्या है? दिस सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस सिस्टर क्रोमैटिड इज आइडेंटिकल. तो कौन सा भी क्या पे जाए कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं कंसीडर करते. एंड दिस विल आल्सो स्प्लिट. उसमें क्या होगा? एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे जाएगा, ठीक है? एंड अनदर सिस्टर क्रोमैटिड विल गो हियर, ठीक है? ठीक है? ठीक है? और इसमें बनेगा फिर कैपिटल T, इसमें बनेगा कैपिटल T, इसमें बनेगा कैपिटल T, इसमें बनेगा कैपिटल V, इसमें बनेगा कैपिटल V, ठीक है? एंड सेम विल बी
same case will be here. ठीक है, same case will be here. ठीक है, ठीक है, capital T, capital T, capital V, capital V. So all gametes are identical. This gamete is identical to this gamete is identical to this gamete is identical to this. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि that plant was pure. हम लोग इसी प्लांट का गैमेट देख रहे हैं स्टूडेंट. ये प्लांट है, इसका ऐसा गैमेट बनेगा. जब ये प्लांट अडल्ट हो जाएगा, इसको फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स में एंथर्स बनेंगे, एंथर्स में इस टाइप के 4 एंथर्स बनेंगे. All 4 anthers are identical. ओरी में भी जो भी ओम बनेंगे, all oms will be identical. ठीक है, तो इस प्लांट का हम लोगों ने 4 गैमेट बना दिया. ठीक है, all gametes were identical. ठीक है, here also all gametes will be identical, but this will be pure for both the characters and this will be pure for both the characters. This will be dominant for both the characters and this gamete यहाँ पे भी स्टूडेंट all gametes will be identical. चारों के चारों गैमेट यहाँ पे आइडेंटिकल होंगे, लेकिन रिसेसिव होंगे. ठीक है, so this is there and this is there, this is there, this is there. ठीक है, ठीक है, so this is small v, small v, small v, small v. ठीक है, small t, small t, small t, small t. ठीक है, now हम लोग अभी क्या करेंगे, इधर भी हम लोग वैसे ही करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अभी क्या होगा स्टूडेंट? So this sister chromatid will go to the one, so this is the one sister chromatid and this will go to the another. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी sister chromatid एक हो जाएगी and this sister chromatid will go like this. ठीक है, तो यहाँ पे एक sister chromatid ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी. ठीक है, so capital T, यहाँ पे capital T, capital T. ठीक है, so capital T, capital T, capital V, capital V. ठीक है, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे आएगी, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे भी फिर सेम होगा. ठीक है, कैपिटल V, कैपिटल V, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t. ठीक है, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v. ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया है स्टूडेंट, जो पैरेंटल जनरेशन है. ठीक है, केस क्या किया है स्टूडेंट कि अलग-अलग क्रोमोसोम, जो दो कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइट और फ्लावर कलर, वो अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे. मतलब ये होता है पी में, पीसम सेटावेल में यही होता है. लेकिन हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि समझो पीसम सेटावेल में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो क्या मेंडल को वही रिजल्ट मिलते जो हम लोग आज पढ़ते हैं? नहीं होता, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो समझो ये हाइट और फ्लावर कलर समझो एक ही क्रोमोसोम पे, हाइट एंड फ्लावर कलर एक ही क्रोमोसोम पे यदि होते तो क्या रिजल्ट आता मेंडल को? ठीक है, सो दैट रिजल्ट विल बी स्टडी हियर एंड व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन. ठीक है, इन ड्रोसोफिला. ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि प्लांट का हाइट एंड फ्लावर कलर जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते थे मेंडल के टाइम पे, वही दो कैरेक्टर ड्रोसोफिला में आई कलर एंड विंग टाइप जो लिंक थे, तो उन लोग मॉर्गन को 9:3:3:1 को रेशियो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि दो अलग-अलग कैरेक्टर्स है, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि वो दो जीन्स है ना, सेम लिंक थे, these two genes were linked. अभी हम आगे जाते हैं. ठीक है, I will be studying ड्रोसोफिला later on. पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो. ठीक है, जो भी कंसेप्ट है वो बेसिक क्लियर करो. ठीक है, अभी क्या होगा स्टूडेंट, सो these are the 4 gametes. ठीक है, समझो इसको हम मेल फ्लावर करते हैं, इसको फीमेल फ्लावर करते हैं. ठीक है, फीमेल मेल gametes बनाते हैं इसको. So all these are male gametes and these are female gametes. Now what we will be doing now, हम लोग क्या करेंगे, एक गैमेट के और एक गैमेट के का फर्टिलाइजेशन करेंगे और हम क्या करेंगे स्टूडेंट, we will make one plant. ठीक है, and that this is no parental generation, this is parental generation and these are the gametes of parental generation. So these are the parents, these are the gametes of parents
and we will be fertilizing the gametes of parent to make F1 generation. ठीक है, तो हम लोग अभी F1 जनरेशन बनाएंगे. ठीक है, तो अभी जब हम लोग F1 जनरेशन बनाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे F1 जनरेशन बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे F1 जनरेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे जब भी F1 जनरेशन बनाएंगे हम लोग, तो F1 जनरेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट? एक गैमेट मेल से होना चाहिए और एक गैमेट फीमेल से होना चाहिए. एक गैमेट कहाँ से होना चाहिए बोलो? मेल से होना चाहिए और एक गैमेट फीमेल से होना चाहिए. तो मेल का एक गैमेट हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो बोलो फिर मेल का कौन सा भी एक गैमेट, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल. इसमें से कौन सा भी पिकअप वन ऑफ द, यदि इफ ए चारों के चारों आइडेंटिकल गैमेट नहीं होते तो हम लोग को 4/4 का पनेट स्क्वायर बना के फिर हम पॉसिबिलिटी का कंसीडर करना होगा हम लोग. यदि ये चारों के चारों गैमेट अलग-अलग है तो हम लोग को पनेट स्क्वायर बनाना होगा 4/4 का और हम लोग को पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी होगी. 16 पॉसिबिलिटीज, उसमें से एक ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी रीड आउट कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटी होगा एक ही. ठीक है, लेकिन अभी there is no need to draw 4/4 Punnett square. क्यों जरूरत नहीं शो 4/4 Punnett square का? क्योंकि all of the gametes are identical. male gametes में भी जो गैमेट 4 है all of them are identical and female में भी जो भी 4 है all of them are identical. ठीक है, now जब हम लोग एक गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? तो एक बनेगा हमारा जाइगोट की एक सेल बनेगी. ठीक है, क्या बनेगी स्टूडेंट? जाइगोट की एक सेल बनेगी. ठीक है, और इस जाइगोट की सेल में क्या होगा स्टूडेंट? दिस, इफ लेट अस सपोज दिस इज फर्टिलाइज्ड विद दिस. ठीक है, एक गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज हुआ है ऐसा मानते हैं. ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट? then again after fertilization there will be pairing of homologous chromosomes. after fertilization क्या होगा? pairing of homologous chromosomes. तो यहाँ पे कौन से homologous chromosomes है? 18 और 18. These are the homologous chromosomes. So after fertilization, what will happen? So this chromosome, ठीक है? This chromosome, capital T, and this chromosome. Now this is a chromosome. This is a chromosome. क्योंकि आगे हम गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट का माइटोसिस होगा, गैमेट ग्रो होगा, ठीक है? और बिफोर माइटोसिस जेनेटिक मैटर का डुप्लीकेशन होगा, तो वहाँ पे एक सिस्टम क्रोमैटिड बनेगी. I will explain now, ठीक है? I will explain that, ठीक है? तो A बनेगा, एक क्रोमोसोम A बनेगा, एक क्रोमोसोम A बनेगा. So this is small, ठीक है? Small, ठीक है? Now this is one chromosome, ठीक है? इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. So this is one chromosome, ठीक है? So this is capital B and another chromosome, ठीक है? Small b, ठीक है? Okay, student. So now this is a zygote. If you consider all possibilities, all the zygotes will be of this type. ठीक है? There will be 16 zygotes, 16 possibilities. या तो ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा, नहीं तो ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा, नहीं तो ये इसके साथ होगा, नहीं तो ये इसके साथ होगा. So 4 possibilities. ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके साथ हो जाए, so 4 possibilities. All of the possibilities are identical. So we will be considering the single one, only one possibility. So this is the case का जो भी हम लोग का zygote बनेगा, ये होगा zygote. ठीक है? ऐसा ही होता था मेंडल के केस में. देखिए समझो, these two genes are linked. Plant height and flower color. These two genes are linked. तो कैसा है स्टूडेंट? अभी कैसा बनेगा? ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट zygote 4 male gametes, 4 male gametes are there, ठीक है? And 4 female gametes are there. हम लोग इनको जो फर्टिलाइज करेंगे, कौन से भी पॉसिबिलिटी कंसीडर करो, 4/4, A4 horizontal डाल दो, A4 vertical डाल दो. So make all the fertilization, and what will be the possibility? There will be a single type of zygote, and that will be this one and this one, जिसमें इस पे होगा कैपिटल T, इस पे होगा स्मॉल t, इस पे होगा कैपिटल B एंड इस पे होगा स्मॉल b. तो बोलो ना अभी क्या है स्टूडेंट? दिस इज zygote, दिस इज zygote, ठीक है? zygote मतलब क्या स्टूडेंट? दिस इज सीड, दिस इज सीड. zygote हुआ है मतलब क्या स्टूडेंट? दिस इज सीड. Now we will be sowing this seed now. We will be sowing this seed, and what will happen? We will look into that plant. If that plant grows, now
now we will look what will happen if that plant grows. तो बोला जब भी हम स्टूडेंट ए सीड, क्योंकि ये समझो एक पोलन ग्रेन है और ये ओवरी है, तो इसके साथ फर्टिलाइज होगा, जो सीड बनेगी वो इस जेनेटिक मटेरियल की सीड होगी. समझो इस सीड को हम लोग, if we sow this seed and grow the plant, what will be the phenotype of that plant? What will be the phenotype of that plant? Tell. Yes, tall in height and all colors will be violet. So that if you look into that plant, so all the plants will be of tall in nature and flower will be violet in color. If we sow this seed, what will be the phenotype of that plant after growing its full height? What will be the phenotype of this seed? Yes? Tall in height and violet in color. ठीक है? अभी देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग आगे जाएंगे. ठीक है? So this was the F1 generation. ठीक है? F1 generation. ठीक है? अभी हम लोग F1 जनरेशन का एक प्लांट देखेंगे. ठीक है? जब ये जाइगोट ग्रो होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जब जाइगोट ग्रो होगा तो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड बनेगी स्टूडेंट एस फेज में. जब जाइगोट ग्रो होगा, क्योंकि दिस जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस. Then after growing to full its maturity, the germinal cells again they will go into meiosis. तो ये जाइगोट ग्रो होगा तो इसकी बनेगी डॉटर सेल, सिस्टर क्रोमैटिड्स. इसकी भी बनेगी सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है? जब ये जाइगोट ग्रो होगा. ठीक है? यहाँ पे भी सेम केस होगी. ठीक है? यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमैटिड इसकी बनेगी और इसकी भी एक सिस्टर क्रोमैटिड बनेगी. ठीक है? ठीक है? नाउ अभी एक सेल फुल्ली मैच्योर जर्मिनल सेल है. ठीक है? दिस इज फुल्ली, अभी इस प्लांट को ग्रो किया हम लोगों ने. ग्रो करने के बाद हम लोग को ये सेल मिली अभी. ठीक है? सो दिस इज द सेल नाउ. ठीक है? जर्मिनल सेल, सोमैटिक सेल में कंसीडर करते हैं हम लोग. ये जर्मिनल सेल है. दिस इज द प्लांट. ठीक है? नाउ दिस इज टॉल इन हाइट एंड violet in flower color, but now this is hybrid. This is not pure now. This plant is not pure. ठीक है? और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम केस कंसीडर करेंगे. ठीक है? दिस इज हाइपोथेटिकल ना. दिस डज नॉट हैपन इन पी, क्योंकि पी में प्लांट का हाइट और फ्लावर का कलर अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे. लेकिन समझो एक ही क्रोमोसोम्स पे होता तो रिजल्ट्स क्या आता. यहाँ पे रिजल्ट्स, इस केस में रिजल्ट अभी जब हम बनाएंगे 9:3:3:1 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर्स है दे आर नॉट सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, इसलिए उतना रेशियो नहीं होगा. यहाँ पे जब हम लोग अभी फर्दर स्टडी करेंगे तो रेशियो बनेगा 9:3:3:1 और उस केस में रेशियो 9:3:3:1 नहीं होगा, जैसे कि ड्रोसोफिला में होता है. ठीक है? आई विल एक्सप्लेन ड्रोसोफिला आल्सो. ठीक है? पहले तो हम मेंडल का स्टडी करते हैं. मेंडल ने बोला था कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन इन ड्यूरिंग मेयोसिस वो इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है? चलो अभी हम लोग लेते हैं F1 जनरेशन का प्लांट ग्रो हो गया टू इट्स फुल मैच्योरिटी और उसके जो फ्लावर्स है उसने भी पोलन ग्रेन्स एंड ओवरीज बनना चालू किया. ठीक है? ठीक है? तो अभी ये प्लांट फुल मैच्योरिटी पे है. ठीक है? सो दिस प्लांट इज एट इट्स फुल मैच्योरिटी एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग गैमेट्स. ठीक है? तो अभी हम लोग को पता है. सो दिस इज द वन एंड दिस इज वन. ठीक है? यहाँ पे पेड़ ऐसा है, पेड़ ऐसा है. ठीक है? तो अभी क्या होगा, जब ये प्लांट पूरा ग्रो हो जाएगा तो जो फ्लावर्स बनेंगे उस पे एंथर्स भी होंगे और ओरिस भी होगी, सेम फ्लावर पे होगी. हम लोग ने क्या किया था इसके पहले क्लास में जो पैरेंटल जनरेशन लिया था, मेल पैरेंट
male flower was from different plant and female flower was from different plant. क्योंकि जो भी male flower था वो tall in height and violet in pure tall in height and pure violet in color, और जो female flower था वो pure dark in height and pure white in color. तो दो अलग अलग प्लांट थे जब हम पैरेंटल जनरेशन लिया था. लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पैरेंट लेंगे मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो लेंगे वो सेम ही प्लांट में से लेंगे. सेल्फिंग बोलते हैं उसको, सेल्फिंग. ठीक है, वी कॉल इट सेल्फिंग. मतलब क्या स्टूडेंट, जो फ्लावर है एक प्लांट है, एक ही प्लांट में एक ही प्लांट का एक फ्लावर को मेल फ्लावर बनाएंगे और दूसरे फ्लावर को फीमेल फ्लावर बनाएंगे, एक ही प्लांट का. जैसे कि हम पैरेंटल कॉम्बिनेशन में जब पैरेंटल का क्रॉस किया था तो उस टाइम में एक पैरेंट अलग प्लांट का था और दूसरा पैरेंट अलग प्लांट का था. लेकिन F1 जनरेशन में जो भी हम क्रॉस करने वाले एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर का बनाएंगे, एक फ्लावर का बनाएंगे मेल फ्लावर मतलब उसके एंथर्स लेंगे और सेम प्लांट के एक फ्लावर के हम ओरिज लेंगे स्टिग्मा स्टाइल, और एक के एंथर दूसरे को डस्ट करेंगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, तो उसको सेल्फिंग बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. ठीक है, तो एक ही प्लांट है अभी. दिस इज द, जब ये ग्रो होगा तो उस पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स होंगे, 10 15 20 25. तो हम क्या करेंगे, एक फ्लावर को मेल फ्लावर बनाएंगे और एक फ्लावर को फीमेल फ्लावर बनाएंगे. तो फ्लावर तो आइडेंटिकल ही होंगे. सो जेनेटिक मेकअप विल बी द आइडेंटिकल. ठीक है, जेनेटिक मेकअप विल बी द आइडेंटिकल. तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, so this is the case now. ठीक है, ठीक है. so these are two flowers now. this is one flower and this is one flower. ठीक है, अभी ये फ्लावर है उसके अंदर जर्मिनल सेल्स है, उसका भी मियोसिस करेंगे. ये फ्लावर है उसके अंदर भी जर्मिनल सेल्स है, उसका भी मियोसिस करेंगे. ये अंतर की सेल्स होगी, मियोसिस बनने के बाद 4 गैमेट बनेगी. ये ओवरी की सेल्स होगी, मियोसिस बनने के बाद 4 गैमेट बनेगी. देखते हो 4 गैमेट आइडेंटिकल है क्या? यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रिजल्ट बोलता है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. देखते हैं ये कैपिटल टी, तो ये भी कैपिटल टी होगा. ठीक है, वी नो दैट ये जो बनेगा सिस्टोक्रोमेटिड इसका आइडेंटिकल बनेगा. ठीक है, और ये है स्मॉल टी. दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी. ये है स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, ये है कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. ठीक है, सेम genotype will be of this because flowers are same. खाली एक का एंथर लेंगे और एक का स्टिग्मा स्टाइल होगी. सेम प्लांट के फ्लावर्स है, प्लांट इज सेम, टू डिफरेंट फ्लावर्स. एक को मेल बनाया एक को फीमेल बनाया, लेकिन genotype तो वही होगा. ठीक है, कैपिटल यहाँ पे होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, capital B, small b and small b. ठीक है, so hypothetical non Mendelian. ठीक है, this is hypothetical, लेकिन Mendelian नहीं है. this is not Mendelian क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिंक किए हैं. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स अलग अलग है, हाइट अलग क्रोमोसोम पे और फ्लावर कलर अलग क्रोमोसोम पे. यहाँ पे हाइट और फ्लावर से क्रोमोसोम पे. ठीक है, सो इसको भी अभी हम ग्रो करेंगे. ठीक है, इसको भी ग्रो करेंगे. अभी देखो क्या होगा स्टूडेंट, दो फ्लावर्स लेंगे, इसके भी दो फ्लावर्स लेंगे. ठीक है, ठीक है, सो दिस विल बी क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसमें भी ये दो क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्योंकि दिस इज द सीड, इफ इट ग्रोज टू इट्स माइक्रोन, तो हर सेल में एक क्रोमोसोम और उसके जर्मिनल सेल में भी एक क्रोमोसोम. सोमेटिक सेल में भी वही होगी, प्लांट लीफ के सेल में, रूट के सेल में, स्टेम के सेल में, सब जगह पे यही जीनोटाइप होगा. तो जर्मिनल सेल में भी यही जीनोटाइप होगा. खाली जर्मिनल में मियोसिस होगा और बाकी सेल्स में मियोसिस नहीं होगा. ठीक है, और ए है कैपिटल टी, तो ये भी कैपिटल टी बनेगा. ठीक है, ए स्मॉल टी, तो ये भी स्मॉल टी बनेगा. ए कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी बनेगा, यहाँ पे भी कैपिटल बी.
यहाँ पे स्मॉल v एंड दिस इज स्मॉल v, ठीक है। सो आइडेंटिकल सेल्स, कैपिटल V, स्मॉल v, ठीक है, कैपिटल T, स्मॉल t एंड स्मॉल t, ठीक है, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, आगे क्या होता है अभी हम करेंगे मियोसिस फर्स्ट। पहले इसका गैमेट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, पहले इसका इनका गैमेट बनाएंगे, ठीक है। चलो अब गैमेट बनाते हैं, ठीक है। याद रखो स्टूडेंट, एक फ्लावर है ऑफ सेम प्लांट, ए और ए फ्लावर सेम प्लांट का है। जैसे कि पैरेंटल जनरेशन में नहीं था, पैरेंटल जनरेशन में हम लोगों ने जो दो फ्लावर्स लिए थे वो अलग-अलग प्लांट के थे। एक प्लांट प्योर था फॉर हाइट एंड कलर, दूसरा प्लांट भी प्योर था रिसेसिव फॉर हाइट एंड कलर। दो अलग-अलग प्लांट के फ्लावर्स थे पैरेंटल क्रॉस में। जब F1 का क्रॉस करने से हुआ के सेल्फिंग में सेम प्लांट के दो अलग-अलग फ्लावर, एक को मेल और एक को फीमेल, ठीक है, उसको सेल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मेंडेलियन। यहाँ पे कंप्लीट जो रेशियो बनाएंगे हम लोग वो 9:3:4 होगा। वो पॉसिबिलिटीज होगी, वो 16 गैमेट्स नहीं हो, 16 प्लांट्स नहीं बनेंगे, 16 पॉसिबिलिटीज। एक ही प्लांट बनेगा, वो 16 में से कौन सा तो एक होना चाहिए, लेकिन जो पॉसिबिलिटी, एक का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, 9, 3, 3, 1, ठीक है। पॉसिबिलिटीज अलग-अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी स्टूडेंट, पहले गैमेट बनाते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में होता है, ठीक है, ड्रोसोफिला में होता है। we will be studying ड्रोसोफिला later on, लेकिन समझो P में यदि दो क्रोमोसोम, दो जीन्स प्लांट हाइट एंड फ्लावर पर लिंक होते तो क्या रिजल्ट होता, ये भी हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। So Mendel was lucky, that's why so all textbooks do mention that Mendel was very lucky, ठीक है, because he was not aware of any kind of such situation. So he got the results very accurate, he got very accurate results, okay। So if this could have been the possibility at that time, then he could not be getting the same results as he was telling to the others। उस केस में तो फिर हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये दो कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन ये दो के साथ नहीं ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो उसने लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मेंडल ने लिंकेज के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको हर ट्रेड में इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता था, ऐसा उसने बोला, उसने 7 ट्रेड ही स्टडी और हर केस में उसको इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता था, 2 लिए 3 लिए सब केस में इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता था, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसका और इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी मियोसिस करेंगे, ठीक है। इसका भी गैमेट करेंगे। अभी यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लोग मियोसिस में एट द टाइम ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं स्टडी करेंगे, और यदि क्रॉसिंग ओवर स्टडी करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट बनेगी। अभी यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर स्टडी नहीं करेंगे तो जो भी हम लोगों को प्रोजेनी मिलेगी दैट विल बी ऑफ पैरेंटल टाइप। अभी देखते हैं कि पैरेंटल टाइप क्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है इनके जो ओरिजिनल पैरेंट है वो कौन से स्टूडेंट, टॉल एंड वायलेट, these are the parents of these two। इनके भी पेरेंट्स क्या है स्टूडेंट, टॉल इन हाइट एंड वायलेट इन कलर, इन दोनों के पेरेंट्स वही है। अभी जब इनकी हम F2 जनरेशन बनाएंगे तो दिस ए जनरेशन देखते क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते क्या होता है और वहां पे देखते क्या होता है, ठीक है। चलो पहले हम गैमेट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल मेक द गैमेट्स नाउ, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन व्हाट हैपेंस, बोलो क्या होता है स्टूडेंट, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, बोलो ना, यस, सेपरेशन ऑफ टेल, सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes at the time of gamete formation, separation of, तो यहाँ पे इसकी दो डॉटर सेल बनेगी, so these are the two daughter cells, meiosis first देखते हैं अभी आप, इसकी भी दो डॉटर सेल बनेगी, ठीक है, इसकी भी दो डॉटर सेल बनेगी, इसकी भी दो डॉटर सेल बनेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मेल बनाया, इसको मेल बनाया, इसको फीमेल बनाया, या आप भी इसको मेल बनाएंगे, ठीक है, इसको फीमेल बनाएंगे, क्योंकि सेल्फिंग करने वाले हम लोग, ठीक है। सेम प्लांट के दो फ्लावर्स का
कोलन ग्रेड और ओरिस हम लोग डस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो पहले गैमेट बनाते हैं। हाँ चलो अब समझो एक क्रोमोसोम किसमें गया है, कैपिटल बी कैपिटल बी, तो 100% इसमें जाना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। So healthy meiosis is that there is no non-disjunction type of phenomenon is there, ठीक है। So एक क्रोमोसोम यहाँ पे गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे गया, यहाँ पे भी सेम होगा स्टोरी, ठीक है। एक खाली मेल गैमेट हो गए, ये दोनों मेल गैमेट हो गए और ये भी मेल गैमेट हो गए, ये एंथर कोलन ग्रेड से एंड दिस इज ओरी, ठीक है। ये कैपिटल की है, यहाँ पे भी कैपिटल की है, तो यहाँ पे जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल की है, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम यहाँ पे आया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आया, एक क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, ये एक कैपिटल V वाला क्रोमोसोम और ये स्मॉल v वाला क्रोमोसोम, ठीक है। दिस क्रोमोसोम इज ऑफ कैपिटल V एंड दिस क्रोमोसोम इज ऑफ स्मॉल v। तो हम लोग को पता है कि A जब सेपरेट होगा तो हो सकता है कि A इसके साथ भी जाए और A इसके साथ भी जाए, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। समझो ये हम इसके साथ लेंगे, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वी आर टू समझो ये इसके साथ जाता है तो ये इसके साथ जाना चाहिए, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी वन। सो लेट्स कंसीडर दैट पॉसिबिलिटी, ये इसके साथ जाता है तो दिस इज कैपिटल V और ये इसके साथ जाना चाहिए स्मॉल v। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके साथ जाए, तो हम लोग को भी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। ऑल दीस आर पॉसिबिलिटीज, ऐसा ही होगा ऐसा आप नहीं बोल सकते, दीस आर द पॉसिबिलिटीज। तो इफ देयर इज एन इंडिपेंडेंट असर्टमेंट what means what, separation of homologous chromosomes independent of each other, ये दोनों का सेपरेशन इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हो सकता है कि ये क्रोमोसोम इसके साथ जाए तो हम लोग को और दो गैमेट्स का पॉसिबिलिटी करना पड़ेगा। विल हैव और ये तो या ये दो गैमेट्स बनेगी, नहीं तो ये दो गैमेट्स बनेगी। तो हो सकता है कि एक क्रोमोसोम इसके साथ जाए और एक क्रोमोसोम इसके साथ जाए, तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगा X, कैपिटल T वाला बनेगा, एक जो X है एक ही X, ठीक है। कैपिटल T मतलब A भी कैपिटल T और A भी कैपिटल T। क्यों स्टूडेंट हमने क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो सेगमेंट ऑफ वन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इधर तो वो भी हम लोग कैसे करेंगे बाद में, ठीक है, जैसे कि इसमें होता था ड्रोसोफिला, ठीक है। तो अभी इस क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी स्मॉल v एंड स्मॉल v, ठीक है। यहाँ पे बनेगा कैपिटल V और इसके साथ जो आएगा हाइट का तो स्मॉल v। अभी देखो these are the gametes after meiosis first, ठीक है। meiosis फर्स्ट के बाद 4 gametes, ठीक है, 1 2 3 and 4, इसमें क्या है कैपिटल V, ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, X small v and small v। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आप बोलो जो शुरू के जो पैरेंट थे, कौन से पैरेंट थे शुरू के पैरेंट्स कौन से थे स्टूडेंट, बोलो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल V स्मॉल v। जब हम लोगों ने इनके गैमेट बनाए थे तो कौन से गैमेट बने थे, जब हम लोगों ने इसका गैमेट बनाया था, so this was the flower from अलग plant और this was the flower from अलग plant, ये दो अलग-अलग प्लांट के फ्लावर थे।
एक मेल प्लांट का फ्लावर था, फीमेल प्लांट का फ्लावर था. This is pure for height and flower color. This is also pure for pure dominant था. This is also pure for height and flower color. लेकिन एडिसिस का ये दो अलग अलग पैरेंट थे, अलग अलग फ्लावर थे, अलग अलग प्लांट के. इसके गैमेट्स कौन से थे स्टूडेंट बोलो? जो गैमेट बनाया था हम लोगों ने इसका गैमेट बनाया था वो कौन सा था बोलो? कैपिटल E कैपिटल V. तो यहाँ पे भी कैपिटल V वाला है स्टूडेंट, कैपिटल V. तो दिस इज ऑफ पैरेंटल नेचर. ये जो गैमेट है वो कौन सा है? पैरेंटल नेचर. और ये जो गैमेट है वो भी पैरेंटल नेचर का है. These are recombinants. Recombinant, N-A-N, recombinants. These two. क्योंकि ऐसा गैमेट पैरेंट में कैपिटल T स्मॉल v के साथ नहीं था. कहीं भी देखो जो पैरेंट को याद करो, पैरेंट के गैमेट्स को याद करो, कैपिटल T स्मॉल v के साथ नहीं था. These are the recombinants. क्यों हुए स्टूडेंट? ये recombinants क्यों बने? क्योंकि इंडिपेंडेंट असर्टेन होता है इसलिए ये recombinant बने. ये इसके साथ जाता है और इसके भी साथ जाता है, इसलिए these two gametes are new. These are recombinants. और ये recombinants क्यों बने? क्योंकि इंडिपेंडेंट असर्टेन होता है इसलिए recombinants बने. अभी यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट recombinants बनते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे. So these are the four possibilities. 1 2 3 4. These are the possibilities. या तो ये दो गैमेट्स बनेंगे, नहीं तो ये दो गैमेट्स बनेंगे. Same gametes will be here also. These are the male gametes. 1 2 3 4 male gametes. These are also male gametes. Female gametes. So there are four types of different gametes. A gamete अलग है, A gamete अलग है, A gamete अलग है, और A gamete अलग है. So we will have to consider all possibilities now. उस केस में हम लोग को सब possibilities consider करनी पड़ेगी स्टूडेंट. So these are the possible male gametes. There will be four possible female gametes. So these are the possible progenies. इसमें से एक ही बनेगी. लेकिन possibilities इसमें से later on we will be discussing this one. पहले देखते हैं कि सब जो लिंकेज होता ईसम सेटावेव में तो क्या होगा. ईसम सेटावेव में लिंकेज होता तो क्या होगा, जैसे कि ड्रोसोफिला में हुआ है आगे जाके, ठीक है? ओके, हम लोग मॉर्गन का स्टडी लेंगे. पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कैसे समझा रहा हूं स्टूडेंट कि इंटरप्रेटेड असॉर्टमेंट पी में है इसलिए ऐसा है. यदि पी में नहीं होता तो क्या होता, जैसे कि वो ड्रोसोफिला में होगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? चलो अभी ये जो सेम प्लांट के दो फ्लावर्स है, एक को हम मेल फ्लावर बनाएंगे, मतलब उसका एंथर्स लेंगे, एक को फीमेल फ्लावर इमेस्कुलेशन करेंगे, उसका एंथर निकाल देंगे और स्टिग्मा स्टाइल करेंगे, ठीक है? चलो अभी जब इसका मियोसिस होगा तो क्या होगा बोलो? जब इसका मियोसिस होगा, इस सेल का जब मियोसिस होगा तो क्या होगा बोलो? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा मियोसिस फर्स्ट में. देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो एक क्रोमोसोम अलग डॉटर सेल में जाएगा और एक क्रोमोसोम अलग डॉटर सेल में जाएगा. तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे भेजेंगे और इसको यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है? तो देखो अभी क्या है, तो बोलो यहाँ पे कैसे है. ए यहाँ पे कैपिटल T, कैपिटल B, ठीक है? यहाँ पे स्मॉल v, स्मॉल t, ठीक है? यहाँ पे कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल V, कैपिटल V, स्मॉल v. देखो बोलो ये गैमेट का है कैपिटल T, कैपिटल V, दैट इज द पैरेंटल नेचर. ये गैमेट कौन सा है? स्मॉल t, स्मॉल v, दैट इज आल्सो पैरेंटल नेचर. ये गैमेट कौन सा है? कैपिटल T, कैपिटल V, दैट इज आल्सो पैरेंटल नेचर.
और ए गैमेट क्या है स्मॉल t दैट इज आल्सो पैरेंटल नेचर। यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं है, जीन्स आर लिंक्ड, जीन्स आर लिंक्ड इंडिपेंडेंट। यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट होंगे कब, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब हम क्रॉसिंग ओवर कंसीडर करेंगे। चलो अभी इसमें हम क्रॉसिंग ओवर कंसीडर करते हैं। यदि क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट में, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है स्टूडेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, इसमें और इसमें तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता because these are the sister chromatids। इसमें और इसमें क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। these two chromosomes are homologous, these two chromosomes are homologous। तो होगा क्या, हो सकता है इसमें और इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए because these are the non sister chromatids of homologous chromosomes। ठीक है, तो समझो लेट अस सपोज कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि क्रॉसिंग ओवर होगा ही, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि क्रॉसिंग ओवर होगा ही, लेकिन समझो होता है तो, यदि क्रॉसिंग ओवर होता है तो फिर अलग गैमेट्स बनेंगे। जैसे कि और जैसे हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी कंसीडर करते थे दिस और दिस, तो यहाँ पे भी हम लोग को पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होगी और, क्योंकि if there is a crossing over, if there is a crossing over तो possibilities क्या है, if there is a crossing over तो possibility क्या है। let us suppose समझो A ब्रेक होके A जो सेगमेंट है इसमें आ जाएगा, तो ये जो क्रोमोसोम बनेगा, ये क्रोमोसोम, क्योंकि बिफोर सेपरेशन ये दोनों क्रोमोसोम का सेपरेशन होने के पहले क्रॉसिंग ओवर होता है। तो एक क्रोमोसोम इधर जाना है, इधर जाने वाला है, एक क्रोमोसोम इधर जाने वाला है, उसके पहले क्रॉसिंग ओवर होगा और वो इसके और इसके बीच में, इसका मतलब है स्मॉल t ये इसके साथ आएगा, तो ये जो क्रोमोसोम होगा यहाँ पे कैपिटल T होगा, क्योंकि ये कैपिटल T ऐसा बना रहेगा, लेकिन इसमें ये स्मॉल t आएगा और ये कैपिटल T इसके साथ जाएगा, ये कैपिटल T इसके साथ जाएगा, मतलब क्या होगा स्टूडेंट बोलो, यस एक कैपिटल T इधर जाएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है। same will be the case for this also, crossing over will be there and क्या होगा फिर इसमें कैपिटल V एंड स्मॉल v। अब यहाँ पे क्या बॉक्स बनेगा स्टूडेंट, कैपिटल V स्मॉल v। जो रिकॉम्बिनेंट बना है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट बने हम लोगों ने, these are so यहाँ पे स्मॉल v होना चाहिए, कैपिटल T कैपिटल T के साथ स्मॉल v है, तो दोनों में कैपिटल T है। और देखो अब क्या होगा, लिसन, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी आपको बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है देखो आप शब्द इसमें और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होगा और इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब A भी जाएगा इसको, A भी इसको जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली इसमें और इसमें, यस नाउ सी यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा फ्रैगमेंट, मतलब ये दोनों यहाँ से टूटेंगे और ये दोनों के दोनों इधर जाएंगे, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता है, समझो ये दो क्रोमोसोम्स ऐसे, लेट अस समझो ये दो these are the chromosome, जब क्रॉसिंग ओवर होता है स्टूडेंट, सो दिस इज द वे, ऐसा नहीं होता है कि खाली इसका और इसका क्रॉसिंग ओवर हो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स,
तो जब इसका और इसका क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका और इसका भी क्रॉसिंग ओवर होगा। जब ए और ए सिस्टर क्रोमैटिड का क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका और इसका भी क्रॉसिंग ओवर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, आजू बाजू में ऐसे नहीं होता है कि क्रोमोसोम ऐसा है, क्रॉसिंग ओवर ऐसे, क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, दोनों साथ में आए, दोनों का क्रॉसिंग ओवर। दिस इज द करेक्ट थिंग, ठीक है। तो ठीक है, ठीक, हाँ, तो होगा क्या अभी, ये पूरा कैपिटल डी इधर जाएगा और स्मॉल डी इधर आएगा, तो जो भी गैमेट बनेंगे वो दोनों कैसे बनेंगे सुनो, ये दोनों स्मॉल डी इधर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्रोमोसोम, तो होगा क्या, बोलो अभी क्या होगा, स्मॉल टी, बोलो ये दोनों फ्रैगमेंट स्मॉल टी के इधर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा बोलो, स्मॉल टी, नीचे का समझो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो क्या बना रहे, तो बोलो कैपिटल बी, तो एक ये इधर जाएंगे, तो कैपिटल टी इधर बनेंगे, सुनो ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल v, so this is the gamete कि जो पैरेंटल में रहता है, जो यहाँ पे देखो सुनो, कैपिटल टी स्मॉल v, कैपिटल टी स्मॉल v, कैपिटल टी स्मॉल v, दिस वाज द रिकॉम्बिनेंट गैमेट। और यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल v, स्मॉल टी कैपिटल v, सो दीज आर द रिकॉम्बिनेंट। लेकिन कब, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो समझो अभी देखो स्टूडेंट, ये दो जीन्स मैंने बहुत अपार्ट किए हैं, क्योंकि एक जीन्स बहुत इस जीन के जीन में हम लोग को पता है कि हाइट और फ्लावर कलर लिंक्ड है, ये हाइट है, हाइट का जीन है यहाँ पे, या फिर फ्लावर कलर का जीन है, एंड दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड। लेकिन समझो एक ऐसी केस कंसीडर करते हैं हम लोग, देखो अभी केस क्या कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ पे भी है कैपिटल टी, ठीक है, इसके तुरंत बिल्कुल इसके नीचे कैपिटल वी एंड कैपिटल वी, समझो ऐसा है, जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड, बिल्कुल क्लोज। यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉसिबिलिटी क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, एक अलग है, सेम क्रोमोसोम में लिंक्ड है, सही बात है, लेकिन दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। समझो ये दो जीन्स कैपिटल टी और कैपिटल वी, these two genes are closely placed, तो क्या होगा स्टूडेंट, so these two genes are closely placed, these two genes are also closely placed, ठीक है। तो ये आगे बनेगा स्मॉल टी एंड इसके बिल्कुल पास स्मॉल v एंड स्मॉल v। अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये फ्रैगमेंट कट होके इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्रैगमेंट कट होके इधर जाएगा, और ये पूरा का पूरा फ्रैगमेंट कट होके इधर जाएगा, सो दैट विल बी द सेम केस, अगेन देयर विल बी पैरेंट रिकॉम्बिनेशन। Recombinants will be not there if genes are closely placed, क्योंकि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो फ्रैगमेंट जाएगा उस फ्रैगमेंट को दोनों भी जीन्स साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जब वो क्लोजली लिंक्ड होंगे। If those two genes are closely linked, then there will possibility of being together will be more than that of not being together, कि जिस केस में लिंक्ड है लेकिन डिस्टेंसली प्लेस्ड है, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर हो सकता है कि खाली एक पार्ट जाएगा दूसरा पार्ट बचा रहे, और उस केस में रिकॉम्बिनेशन होगा इसका। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है स्टूडेंट, ड्रोसोफिला में मार्विन ने क्या किया स्टूडेंट, अलग-अलग स्टडीज की स्टूडेंट, और उसने क्या किया, उसको क्या बोला, जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज है उसमें बोलता था कि वो जीन का डिस्टेंस कितना है, कि हम लोगों को पता है स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट्स कम होगी जब डिस्टेंस, समझो अभी ये रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स स्टूडेंट, क्योंकि जीन्स आर क्लोजली प्लेस्ड। जब रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी तो रिकॉम्बिनेंट F2 जनरेशन नहीं बनेगा, तो ऑल द जनरेशन विल बी ऑफ पैरेंटल टाइप, तो जो परसेंटेज, जो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज उसको मिलता था उसके बेसिस पे वो बोलता था कि वो दोनों के जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है।
क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इस केस में अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट? ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे। दिस विल स्टडी इन ड्रोसोफिला। समझो ऐसा होता स्टूडेंट कि बिल्कुल ही पास है तो दिस टू गैमेट्स वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। ये दो गैमेट क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है स्टूडेंट, क्रॉसिंग ओवर इज इनइविटेबल, वो होता ही है। लेकिन समझो क्रॉसिंग ओवर हुआ और जीन्स आर क्लोजली पैक्ड, देन आल्सो देयर इज नो यूज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। उसके से रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी, और रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी तो देयर विल बी जो हम लोग को 9:9:3 अभी इसको हम रेशियो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों पॉसिबिलिटी समझो क्रॉसिंग ओवर हुआ परफेक्टली, जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसका और इसका रेशियो तो सेम होने वाला है, क्योंकि इनका जो बनने का पॉसिबिलिटी है वो सेम एज दैट ऑफ दिस, बिकॉज़ क्रॉसिंग ओवर तो होने ही वाला है एंड डिस्टेंस आर genes are distantly placed, sure they are going to separate, they are going to segregate. So this is one of the kind of independent assortment if genes are distantly placed. That is also we can say that they are independently assorted because they are distantly placed and crossing over तो होता ही। But if genes are closely placed, then there is no use of crossing over also. The parental genes will be linked together and in that case the recombinants will recombinant 3:3. 9:3:3:1. These are the recombinants one because this is parental tall and wide. This is also parental dark and white. So these are the recombinants. 3 and 3 will not appear. So here will be 12. Okay, some will go here. If genes are closely linked, and this way, and this is 0 to 0 is place. If genes are closely linked, very closely linked, so this will be the ratio. इसको हम जब चार्ट बनाएंगे तो हम लोग को पता है कि इसका और इसका पॉसिबिलिटी 0 है, 0 and 0। ये दो गैमेट्स बनेंगे नहीं। यहाँ पे भी हम लोग जब ऐसा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे नहीं। So this type will not do that. ये कौन सा नहीं होगा? This will not be there. Only this will be there, this will be there, this will be there, and this will be there. ये नहीं बनेगी क्योंकि ये नहीं है, गैमेट्स ही नहीं है तो ये दोनों का सवाल नहीं, ये दोनों का भी नहीं, ये दोनों का भी सवाल नहीं, ये दोनों का नहीं, ये इधर वाले हैं लेकिन ये तो नहीं है। So these are the only and these are the parental type. यहाँ पे देखो सब आप कनेक्ट करने ये वाला है कैपिटल की वाला है। जब डायहेब्रिड देखेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि जो भी बनेंगे दैट विल बी ऑफ पैरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंस नहीं होगी जब जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड, तो यही होता है, ठीक है। द सेम वाज देयर कि इंडिपेंडेंट assortment and linkage, Morgan studied and demonstrated the linkage. Mendel was not able to do that. Why did Morgan was studying Mendel's laws and he got some deviation from that, then he explained that deviation and that was called as linkage, ठीक है। तो अभी हम लोग ड्रोसोफिला का देखेंगे। ये तो मैंने आपका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने आपको पढ़ाया था वो एक अलग टाइप से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिया है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेते थे जिसमें कैरेक्टर्स अलग-अलग क्रोमोसोम थे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा लेकिन जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका है? These are that term is for characters. क्रोमोसोम्स का तो होगा ही होगा because they are free to go anywhere, लेकिन जीन्स का क्या है? तो एक क्रोमोसोम में ज्यादा जीन्स है तो बोल नहीं सकते, ठीक है। So that was the case of revision कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग